Greetings, students. Welcome back to the English class. Now, children, we have completed the chapter Mother's Day, and now we will go on with the summary. Okay. Now, let us see that Mother's Day is written by J.B. Priestley. Now, you can see the picture out here. उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है. See here, you can see the picture. This is J.B. Priestley, who is the writer of the Mother's Day. Okay. Now let's move on to next slide. Now let us talk about the author. Okay, who's author? John Boynton J. Priestley. Okay, he the novelist, playwright and broadcaster. ठीक है. John Boynton J.B. Priestley was born in Yorkshire in 1894. At the age of 16, he took a job as a junior clerk at a local wool firm and started writing at night. ठीक है, तो रात को वो लिखना शुरू कर दिया. ठीक है, और मॉर्निंग में वो जूनियर क्लर्क की तरह काम करना शुरू कर दिया. चिल्ड्रन, now during the First World War, that was between 1914 and 1918, children, Priestley was posted to France and was badly wounded. After the war, he rarely spoke of these experiences. When he returned to Britain, he attended Cambridge University and started to write again, mainly short pieces for local periodicals. Before embarking on a career as a freelancer writer in London, by the age of 30, he was well established as an essayist, critic, and a novelist. During the Second World War, Priestley was a regular and influential broadcaster on the BBC. Okay, children, now we will see what is in the story. The following play is a humorous portrayal, humorous which is very funny, okay, जो बहुत मजाकिया है, of the status of women or of the status of mother in a family. Let's read to see how Mrs. Pearson family reacts when she tries to stand up फॉर अ ओन राइट्स. ठीक है, अब कैसे देखते हैं मिसेस पियर्सन जब अपने राइट के लिए खड़ी होती है तो उनके जो बच्चे, उनके जो हस्बैंड है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं. नाउ कैरेक्टर्स देखेंगे. जो मिसेस एनी पियर्सन है, मिसेस एनी पियर्सन है, शी इज़ इन लेट 40s. चिल्ड्रन, शी इज़ बिट साइलेंट एंड शी इज़ बिट प्लेजेंट एंड नर्वस woman. Okay, she actually takes care of her house and her children, and she is the one who has spoilt them, right? Now George Pearson, who is Annie's husband, and he is he does not care. He feels that he is self important. वो अपने आप को बहुत important फील करवाते हैं. तो तभी जब वो जहाँ पर वो क्लबिंग के लिए जाते हैं चिल्ड्रन, तो वहाँ पर सब उनका मजाक बनाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन. ठीक है. नाउ वी हैव डोरिस पियर्सन. हु इज डोरिस पियर्सन चिल्ड्रन? डोरिस पियर्सन इज द चाइल्ड ऑफ एनी पियर्सन, जो कि 20s में है. एंड उनको बोला गया कि वो बहुत अच्छी हो सकती है अगर उसको बिगाड़ा ना गया हो तो. ठीक है. शी ऑलवेज लाइक्स टू गिव ऑर्डर टू हर मदर, and she treats her mother as a servant. Now we have Cyril Pearson. Now Cyril Pearson, children, is actually a male counterpart of Doris Pearson. ठीक है. He is the brother of Doris Pearson and the son of Mrs. Annie and George. Okay, now Cyril Pearson is also the same. He also loved to give orders to his mother. Okay, now we have Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, children, she is Annie's friend as well as she is a neighbor. She's a fortune teller who has learnt this fortune teller from the east. ठीक है. उनके हस्बैंड है जो कि ल्यूटेनेंट क्वार्टर मास्टर हैं
और उन्होंने भी क्या सीखा है, सेम फॉर्चून टेलिंग सीखा है, राइट। बट मिसेस फिट्जराल्ड ने उनसे ज़्यादा सीखा है, ठीक है। अब शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। शी हैज़ अ वेरी डीप एंड हस्क वॉइस, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन। इंट्रोडक्शन ऑफ मिसेस एनी पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड। देखो हमने क्या करना है चिल्ड्रन, एक अगर हमें प्ले करना है तो हमने एक रूम का सेटअप भी देना है उसको, ठीक है। एक दरवाजे, दो दरवाजे होने चाहिए, एक किचन की तरफ खुलता है और एक मेन स्टेयरकेस की तरफ खुलता है, ठीक है। तो हम ऐसा बिठा सकते हैं एक टेबल पे जहाँ पर मिसेस पियर्सन है। देखो शी इज़ एक्चुअली मिसेस पियर्सन एंड शी इज़ एक्चुअली मिसेस फिट्जराल्ड। तो देखो हम ये भी दिखाना है कि उनके कॉफ़ी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं चिल्ड्रन, वो कॉफ़ी पी रहे हैं, राइट। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना रखा हुआ है, राइट, वी कैन शो। और यहाँ पर हमें कार्ड्स भी दिखाने हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मिसेस एनी पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड आर नेक्स्ट डोर नेबर्स, मतलब घर के बगल में ही ये दोनों क्या है, नेबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन देम, बस सिर्फ वो घर के पास रहते हैं, वो नेबर है, यही बहुत है। बट क्या है, उनके बीच कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। एनी इज अ प्लेजेंट एंड नर्वस लुकिंग वुमन इन हर 40s. फिट्जराल्ड इज ओल्डर हेवियर वुमन विद अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो अगर हमें देखो दोनों की पर्सनैलिटी क्या है, ऑपोजिट है चिल्ड्रन, ठीक है, क्या है, ऑपोजिट है। तो जो मिसेस ये माना मिसेस पियर्सन है और ये मिसेस फिट्जराल्ड है, इनके थोड़ी दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है। और दोनों क्या है, जो कि एनी है वो बहुत नर्वस लुकिंग है, और जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो ओल्डर हेवियर वुमन है with strong personality. Now, Annie has a soft voice, whereas Mrs. Fitzgerald has deep, throaty voice. जो ह करके, हस्क करके आवाज़ आती है, वो मिसेस फिट्जराल्ड की है, और एनी की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस है। मिसेस फिट्जराल्ड इज़ अ फॉर्चून टेलर एंड इज़ रीडिंग एनीज फॉर्चून। तो अब मिसेस फिट्जराल्ड कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड इज़ अ फॉर्चून टेलर चिल्ड्रन, ठीक है। एंड शी एडवाइसेस एनी टू बी स्ट्रिक्ट एंड बिकम बॉस इन अ फैमिली। एनी और मिसेस पियर्सन had been taken granted by her family. Her husband, son, and daughter are so spoiled that they don't do any work or help their wife or mother. Instead, they treat her disrespectful and ungrateful. नाउ चिल्ड्रन मिसेस फिट्जराल्ड है, वो फॉर्चून टेलर है, और वो एनी का फॉर्चून बताते हैं। और वो क्या बताते हैं, वो एडवाइस करते हैं किसको, एनी को, कि अगर तू स्ट्रिक्ट नहीं रही ना तो यू वोंट बिकम द बॉस ऑफ द फैमिली। एनी हैज़ बीन टेकन ग्रांटेड, मतलब वो हैज़ बीन टेकन ग्रांटेड बाय हर फैमिली, ठीक है। वो हर हस्बैंड, सन एंड डॉटर आर सो स्पॉइल्ड दैट दे डू नॉट डू एनी वर्क, वो घर का कोई भी काम नहीं करते, सारा का सारा मिस एनी करती हैं। इंस्टेड दे ट्रीट, और इसके बदले में दे ट्रीट हर विद डिसरिस्पेक्टफुल एंड ungrateful. Now, Mrs. Fitzgerald is enraged at such a treatment and asks Mrs. Pearson to take action. और Mrs. Pearson, जो Mrs. Fitzgerald है, इस चीज़ में बहुत गुस्सा होती है, बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। However, Mrs. Pearson is reluctant, even though she wants others in her family to respect her. She cannot be pleasant with them, so she is constantly worried about them. ठीक है, चाहे वो कितने भी बदतमीजी करें, मिस पियर्सन उनका हमेशा ध्यान रखती है, उनको रिस्पेक्ट करती है, वो चाहती है कि वो उनको रिस्पेक्ट करे, बट शी कैन नॉट बी अनप्लेजेंट विद देम, वो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Now, this is Mrs. Fitzgerald outlines the plan to reform Annie's family. तो अब कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, तो मिसेस फिट्जराल्ड एक प्लान बनाती, क्या प्लान बनाती है, मिसेस फिट्जराल्ड सजेस्ट दैट दे शुड टेम्परली एक्सचेंज द पर्सनैलिटी बाय यूजिंग अ मैजिक स्पेल दैट शी हैड लर्नड इन द ईस्ट। अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने मिसेस फिट्जराल्ड ने बोला कि मैंने क्या करा है, एक मैजिक स्पेल करा है, एक मैजिक स्पेल क्या करा है, लर्न किया है, ठीक है, कहाँ से, ईस्ट से। और हम क्या करेंगे,
पर्सनालिटी एक्सचेंज करेंगे, मतलब जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो मिसेस पियर्सन है, ये दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को चेंज कर लेंगे। दैट मीन्स जो मिसेस फिट्जराल्ड है, जो यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड है वो कौन बन जाएगा, मिसेस पियर्सन, और जो यहाँ पर मिसेस पियर्सन है वो फिट्जराल्ड बन जाएंगी। उनकी सोल एक्सचेंज होगी, बॉडी नहीं होगी चिल्ड्रन, ठीक है, बॉडी क्या होगी, सेम रहेगी। शी टेक्स एनीज हैंड एंड चांस स्पेल। अब क्या करते हैं, वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और कुछ स्पेल बोलते हैं। A transformation takes place and the personality of Mrs. Fitzgerald shifts into the body of Annie and vice versa। ठीक है, अब उनकी क्या होगी, बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है, ठीक है। Now, Annie is scared, but Mrs. Fitzgerald assures her that the change is reversible. Mrs. Fitzgerald, now in the body of Annie, stays at Annie's house and sends Annie in Mrs. Fitzgerald's body to her house where she can relax. अब क्या करती, मिसेस फिट्जराल्ड बोलती चिंता मत करो, ये जो हमने करा है ये हम वापस कर सकते हैं, बस अब तुम क्या करो, मिसेस पियर्सन को बोलती जिनके अंदर मिसेस मिसेस पियर्सन है, जो कि जिनके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा है, उनको बोलती है अब तुम यहाँ से जाओ, और खुद वहाँ पर बैठ जाती, कौन, मिसेस फिट्जराल्ड का सोल वहाँ बैठ जाता है, बट मिसेस पियर्सन की बॉडी ही वहाँ पर रहती है। नाउ डोरिस गेट्स शॉक। अब डोरिस उनकी बेटी आती है, ठीक है, उनकी बेटी आती है, अब उसको शॉक लगता है, क्यों, Doris, the daughter of Mrs. Annie, a beautiful 20-year-old girl, enters the house. She gets shocked at seeing her mother smoking and playing cards alone. अब क्या होता है चिल्ड्रन, जब सीन ओपन होता है तो हम देखते हैं कि मिसेस फिट्जराल्ड क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, ठीक है, बट अब क्या करते हैं, जैसी वो एंटर करती है, देखो होती तो वो मिसेस पियर्सन है, बट आत्मा किसकी है, मिसेस फिट्जराल्ड की है, ठीक है चिल्ड्रन। तो क्या होता है चिल्ड्रन, तो वो ही स्मोक करती है, ठीक है। She inquires about tea and her yellow dress, but get a rude reply from her mother. वो इंक्वायर करती कि क्या आपने मेरी ड्रेस कर दी है, प्रेस कर दी है, क्या आप मेरे लिए चाय बना दो, क्या आप चाय बना दोगे। Annie tells her to make tea for herself and iron her clothes herself too. She tells Doris that she works much more than her and does not even get a pay. वो ना फिर बोलती कि अगर तुम्हें चाय चाहिए या तुम्हारे कपड़े प्रेस होने चाहिए तो खुद कर लो, ठीक है। शी टेल्स डोरिस दैट शी वर्क्स मच मोर दैन हर, और वो डोरिस को बताती कि तुम क्या करते हो, मैं तुमसे ज़्यादा काम करती हूँ। Now, further, when Doris informs her mother about the plans with Charlie Spencer, Annie makes fun of him. She calls him buck-teeth and half-witted. अब क्या होती है, डोरिस बोलती कि वैसे वो बोलती कि अच्छा तुम्हें उसकी मदर पूछती है तुम ये ड्रेस तो आयरन करे कहाँ जा रही हो, तो उस समय डोरिस रिप्लाई करती है कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने फ्रेंड के साथ जो कि चार्ली स्पेंसर है उसके साथ जा रही हूँ। तो फिर अब मिसेस एनी क्या करती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं कि क्या है, तुम्हारा जो बेटा है वो क्या है, बकटीत है। बकटीत मतलब जो आगे, जिसके दांत आगे की तरफ होते हैं और जो कि पागल होता है। एनी ऑल्सो टेल डोरिस दैट इफ शी वर एट हर एज शी वुड हैव फाउंड समवन बेटर। तो अब क्या करती है, एनी बोलती है अगर मैं तुम्हारी एज की होती ना डोरिस, तो मैं बहुत अच्छे इंसान को के साथ होती। ऑल ऑफ दिस हर्ट्स डोरिस एंड शी रन्स अवे क्राइंग। और ये सारी की सारी क्या होता है, उसको डोरिस को हर्ट करता है और वो वहाँ से चली जाती है चिल्ड्रन। नाउ सीरियल ऑल्सो गेट्स शॉक। अब कौन आता है, एंटर कौन करेगा, सीरियल। आफ्टर डोरिस लीव सीरियल एंड सन एंटर्स द रूम asking for tea when Anne tells him it isn't. He gets annoyed and angry. अब क्या करती है, सीरियल आता है, पूछता है कि चाय बनी हुई है, तो उसकी मदर बोलती कि नहीं चाय तो नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा होता है। He tells his mother to get the tea ready as he does not have much time, but Annie doesn't do anything. Even when he asks about his clothes, Annie refuses to do anything. तो वो बोलती कि
ठीक है, वो मना कर देती कि टी रेडी नहीं है, और वो पूछता है कि क्या मैंने आपसे पूछा था कि मेरा सामान बाहर निकाल दो और चीज़ें चीज़ें जो मेंट करने के लिए हैं, उनको मेंट कर दो, क्या आपने वो कर दिया है? तो एनी मना कर देती है, बोलती नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, मैं क्यों करूँ? ठीक है, और मुझे वो बोल रही कि नहीं, मुझे मेंट करना चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। द सीरियल्स गेट एंग्विश्ड बाय हिज मदर्स स्ट्रेंज बिहेवियर. ही टेल्स her that she was not talking nicely. His mother coldly replies that they all talk to her like that. They do what they want to do and now she has joined them. तब सीरियल बोलता है कि वो बहुत गुस्सा होती है अपनी मम्मी के बिहेवियर, और बोलता है कि आप हमसे इतनी रूडली कैसे बात कर सकते हो? तो उसकी मदर बोलती है जैसे तुम मुझसे बात करते हो रूडली, वैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, दे डू व्हाट दे वांट टू डू। और बोल रहे तुम्हें तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करते हो, और अब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ज्वाइन कर चुकी हूँ, ठीक है, मेरी भी मर्जी आएगी तो मैं वही करूँगी। जस्ट देन डोरिस एंटर्स, और एकदम से कौन आता है? डोरिस आती है। एंटर्स द सीन वेयरिंग अ शोल्डर रैप। शोल्डर रैप इज़ अ काइंड ऑफ अ गाउन, ठीक है, जिसमें मतलब वो जब कोई तैयार नहीं होता देन अ पर्सन वेयर्स दैट. She had been crying. Annie, upon seeing Doris, remarks that she was looking terrible. जैसी डोरिस अंदर आती है, सीरियल बोलते हैं यार तुम तो बहुत बुरी दिख रही हो, ठीक है। डोरिस टेल्स हर मदर that it was because she made her cry. Annie now goes to get a stout to drink. अब बताओ, वो रोते रोते उसकी आंख लाल हो जाती, तो एनी पूछती तुम तो बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही हो। तो डोरिस बोलती कि ये तुम्हारी वजह से मम्मी, तुमने मुझे रुलाया है, ठीक है। अब उस समय ही एनी क्या करती है? स्टाउट लेने, स्टाउट मीन्स बियर लेने चली जाती है, ठीक है। नाउ डिस्कशन बिटवीन डोरिस एंड सिरियल. बोथ डोरिस एंड सिरियल आर फिल्ड विद हॉरर एंड शॉक एट देयर मदर्स बिहेवियर. और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं कि मैं हमारी मदर कैसे बिहेव कर रही है. बोथ वंडर व्हाट हैज़ हैपेंड टू देयर मदर सडनली. अब वो वंडर करे क्या हो क्या गया है. डोरिस थिंक्स दैट शी गॉट हिट ऑन हर हेड बाय समथिंग. अब डोरिस को लग रहा है कि क्या पता उनकी क्या है, सर कहीं पर लग गया है, ठीक है, और वो पागल हो चुकी हैं. शी सीज दैट द मैनर इन विच देयर मदर स्पोक हर्ट हर मोस्ट एंड मेड हर क्राई. बोलती जैसे मेरी जैसे हमारी मम्मी ने मुझसे बात करी ना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है, और इसी की वजह से मैं रोई भी हूँ. Both started giggling at the thought of what will happen if their mother keeps behaving in this weird manner in front of their father. अब वहाँ पर वो थोड़ा हंसने भी लगते हैं और बोलने लगते हैं अगर पापा आ गए और इस नेचर को पापा ने देख लिया जिस नेचर से ये देख रहे हैं तो क्या होगा. Now Annie remarks about her family. When Annie sees Doris and Cyril giggling, she remarks that it was high time they grew up. Doris then asked her if they had done something wrong. Annie tells them that it is actually their behavior what bothered her the most. तो उन्होंने बोला कि जब वो ना एक दूसरे के साथ हंस रहे थे तो बोलते कि इतने तुम बड़े हो चुके हो, वैसे तो तुम बोलते हो कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं और अब तुम वो बड़े होने की बस एक्टिंग ही करते हो, तुम बड़े नहीं हुए हो. नाउ एनी टेल्स देम एक्चुअली दैट इट इज़ एक्चुअली देयर बिहेवियर दैट हैज़ बॉदर्ड देम. तो एनी क्या बोलती कि ये जो तुम्हारा बिहेवियर ना ये मुझे बॉदर करती है. दे ऑलवेज कम, asked for something and went without bothering to know whether she wanted to go out or how she was feeling. तो बोलते कि तुम्हारा बस ये काम आता है, आते हो, चाय पीते हो, कपड़े पहन के फिर निकल जाते हो, ये नहीं बॉदर करते हो कि किसकी फीलिंग क्या है. She always does her best to keep everything happy, but all three of them were not bothered about it. अब क्या करते हैं कि वो उनको खुश रखने की बहुत कोशिश करती है बट वो कभी वो रिस्पेक्ट पाती नहीं है. कौन? एनी. एनी ऑल्सो रिमार्क्स दैट वाइल द थ्री ऑफ देम डू अ जॉब ऑफ 8 hours a day with 2 days off at the weekend, she goes on working 7 days round the clock. वो बोलते जब तुम 8 घंटे पूरे दिन भर काम करते हो और सैटरडे संडे को तुम्हारा क्या रहता? ऑफ है, बट मैं तो 7 दिन काम कर रही हूँ बिना रुके, ठीक है. शी इन्फॉर्म्स दैट
ऑन वीकेंड शी माइट बी ऑल्सो बी गोइंग, और वो बताती कि इस वीकेंड कहाँ जाऊंगी, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी कहीं बार. Doris is really worried about what will happen if mother takes a holiday on weekends. However, Annie assures Doris that she would do some work on Saturday and Sunday only when she is requested or thanked for whatever she does. अब क्या है, डोरिस ना बहुत ज़्यादा वरिड हो चुकी है और वो बार बार अश्योर करती कि आप कहीं जाओगे 3 दिन ना काम करोगे ना, तो फिर वो बोलती हाँ मैं सिर्फ काम करूँगी, जैसे थोड़ा सा बेड बना लूँगी या खाना खाना तब बनाऊंगी जब तुम मुझे क्या करोगे, थैंक यू करोगे या रिक्वेस्ट करोगे. शी हैड दैट शी माइट गो आउट टू द वीकेंड एंड शी was fed up of staying in the house. When Doris inquires what about it, Annie tells her that she's just going out to be like them. तो बोलती है, फिर उनको डिसाइड करती कि नहीं मुझे क्या करना है, वीकेंड के लिए बाहर ही चले जाना चाहिए. तो डॉरिस इंक्वायर करती कहाँ जाओगी, क्यों जाओगी, तो वो बोलती कि जैसे तुम चले जाते हो ना वैसे मुझे भी जाना चाहिए. हियरिंग दिस डॉरिस एक्सप्रेशंस आर कंसर्न विद एनी रूडली शट्स हर डाउन. ठीक है, तो अब एनी उनको पूरे बोलती कि चुप, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम क्यों मुझसे क्वेश्चन पूछ रही, मैं पूछती हूँ क्या जब तुम चार्ली स्पेंसर के साथ बाहर जाती हो. नाउ जॉर्ज पियर्सन इज शॉक्ड एट हिज वाइफ्स बिहेवियर. अब जॉर्ज पियर्सन कौन है, मिसेस पियर्सन का पति है, राइट. नाउ ही कम्स होम. नाउ मिस्टर जॉर्ज कम्स नाउ एंटर्स द हाउस. ही इज अबाउट 50 years old एंड कंसिडर्स हिमसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. मैंने बताया भी था कि जो जॉर्ज है बेटा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराते हैं. ठीक है, वो ना सेल्फ वो बोलते हैं ना जिस जो अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है. ही गेट्स अनॉयड एट हिज वाइफ हु इज सिपिंग स्टाउट when he enters. He tells her that he does not want any tea as he has to go out to the club for supper. उसने बोला कि वो आता है, ठीक है, पहले तो गुस्सा होता है. क्यों गुस्सा होता है चिल्ड्रन, क्योंकि उसकी वाइफ क्या पी रही है, स्टाउट. स्टाउट मतलब बियर पी रही है. और दूसरा वो बोलता है कि वैसे मैं बताना भूल गया था कि आज मैं टी नहीं लूँगा. ठीक है, मुझे क्या करने जाना है, सपर के लिए जाना है क्लब में. Annie tells him that she has not prepared any tea anyway. At this, George gets annoyed that his wife is not bothered about him. अब वो बोलती कि मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं की, क्या पियोगे. तो जॉर्ज बोलता है कि तुम मेरे लिए कंसर्न ही नहीं हो. एनी कंटिन्यूज टू रिब्यूक हिम, उसको डांटना शुरू करती है, टेलिंग हिम दैट ही इज नॉट रिस्पेक्टेड इन द क्लब वेर ही कीप्स going every day. He tells him that people at the bar in the club call him Pompey Ompy Pearson due to his self-important behavior. अब एनी उसको और ज़्यादा डांटने शुरू कर देती है और बोलती कि तुम्हें तो क्या क्लब में भी रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ तुम्हारे लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं कि तुम क्या हो, पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन हो, राइट. जॉर्ज कैन नॉट बिलीव वट एनी सेज एंड कन्फर्म्स द ट्रुथ फ्रॉम हिज सन सीरियल. बोलते कि जॉर्ज यकीन ही नहीं कर पाता कि एनी क्या बोल रही है, तो वो क्या करता है, वो कंफर्म करता है अपने बेटे से, सीरियल से. व्हेन सीरियल टेल्स हिज मदर दैट शी हैज हर्ट देयर फीलिंग, एनी टेल्स हिम दैट इट डज people good to have their feelings sir, so also tell serial that he has no future. ठीक है, तो अब वो बोलती कि नहीं ये तो फिर सीरियल गुस्सा हो जाता अपनी मम्मी से कि आपने पापा को क्यों बोला, उनको हर्ट हो जाता. तो बोलती कि कई बार ना सच्चाई बताने से कई बार हमें सच्चाई बता देनी चाहिए. और फिर सीरियल को डांटना शुरू कर देती कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है. जस्ट देन देर इज अ नॉक, और उसी समय क्या होता है, देर इज अ नॉक. Who comes? Cyril checks on the door and reports that it was silly old bag Mrs. Fitzgerald. देखो उन्हीं की बुराई कर रहा है उन्हीं के सामने. Hearing this, Annie rebukes Hitz and asks him to let her in. तो ठीक है, अब क्या होता है जब वो ऐसे बोलती है ना, ओल्ड फैट बैग या ओल्ड सिली बैग बोलती है, तो मिसेस Fitzgerald, hearing this, Annie rebukes Hit and asks him to let her in. बोलते अगर दोबारा ऐसा बोला ना किसी के बारे में तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी. ठीक है, हियरिंग दिस, ठीक है, कि वो किसको, मिसेस फिट्जराल्ड को क्या बोला, सिली ओल्ड बैग बोल रहा है.
The real Mrs. Pearson returns. Now, Mrs. Fitzgerald, actually, Mrs. Pearson is worried for her family. When she expresses it, Cyril rudely answers. तो वो बोलते हैं कि वो ना वापस आ जाती। कौन? मिसेस फिट्जराल्ड। ठीक है, उनके बॉडी में कौन है? मिसेस पियर्सन। अब वो वरीड होती कि घर पे हो क्या रहा है। सच ए disrespectful behavior earns a scolding from Annie। और वो एकदम से डिसरिस्पेक्ट करता है, किसको? रूडली बात करता है, किससे? मिसेस फिट्जराल्ड से। तो एनी को बहुत गुस्सा आता है, बोलती कि वो बहुत ज़्यादा डांटती है, किसे? सीरियल को। आफ्टर सीरियल लीव्स, मिसेस फिट्जराल्ड एंड मिसेस पियर्सन स्टार्ट्स टॉकिंग। Annie says that she is putting everyone in their places, telling them how they really are. While they are talking, George enters the room and gets angry and rude towards Mrs. Fitzgerald for entering their quarrel. अब क्या होता है कि जैसी वो ये बातें करती रहती है, तब तक कौन आ जाता है? जॉर्ज आ जाता है, और वो गुस्सा होता है कि हमारी बातों के बीच में मिसेस फिट्जराल्ड क्या कर रही है। ही इज एंग्री एट एनी फॉर ruining his mood, but Annie remains unaffected. In fact, she tells him to be respectful and mannerly in front of guests and neighbor। बोलती कि तुम क्या करो, इन नेबर्स के सामने, इन गेस्ट के सामने क्या रहो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहो। Hearing this, George is engaged with Annie to threaten him. Seeing this angry wife, George is intimidated. Doris again enters the scene. She's like her brother and father. She's also disrespectful towards Mrs. Fitzgerald and that's get reprimanded। फिर उनको भी स्कोल्डिंग मिलती। जैसे अब डॉरिस भी आती, वो भी मिसेस फिट्जराल्ड से बदतमीजी करती है, और फिर मिसेस पियर्सन उसको भी डांटती है। नाउ मिसेस एनी Pearson and Mrs. Fitzgerald go back to their original place. Now, the real Annie Pearson, now Mrs. Fitzgerald, gets really disturbed and wanted everyone to leave as it wants to talk in private and Annie विद एनी, द रियल मिसेस फिट्जराल्ड। अब ठीक है, वो बोलते कि अब सब के सब चले जाओ, मुझे किससे बात करनी है? मुझे मिसेस एनी पियर्सन से बात करनी है। ठीक है, मिसेस एनी पियर्सन को किससे बात करनी थी? मिसेस फिट्जराल्ड से बात करनी थी। मिसेस शी टेल्स मिस फिट्जराल्ड दैट शी कैन सी all them are miserable and now it is time to change back into their ट्रू सेल्स। नाउ मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि मिसेस एनी पियर्सन की बॉडी पर रहे हैं, वो बताती देखो वो कैसे मिजरेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड अग्रीज एंड दे अगेन गेट बैक टू देयर ओन सेल्स। अब वो क्या करते हैं? मिसेस फिट्जराल्ड बताती है कि देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब मिसेस जो फिट्जराल्ड थे, वो प्लीज़ बोलती कि वो मिजरेबल फील करती क्योंकि उसने अपने फैमिली को कभी ऐसे देखा नहीं था। तो मिसेस फिट्जराल्ड अग्री करती है एंड दे गेट बैक टू देयर ओन सेल्स। After they came home back in the original forms, Mrs. Fitzgerald tell Mrs. Pearson to be firm and strict if required। अब जैसे वो अपनी बॉडी पे वापस आ जाते हैं, सोल वापस आ जाता है, तो मिसेस फिट्जराल्ड उनको बोलती है, मिसेस पियर्सन को, कि स्ट्रिक्ट रहना। ठीक है, शी इवन वॉन्ट्स हर नॉट टू गिव एनी अपॉलॉजी और एक्सप्लेनेशन। वो डांटती कि कोई भी अपॉलॉजी मत देना और एक्सप्लेनेशन भी मत देना, अदरवाइज दे विल अगेन स्टार्ट टीजिंग हर, स्टार्ट ट्रीटिंग हर इनडिफरेंटली। बोले नहीं तो वो क्या करना शुरू कर देगी, तुम्हें सेम तरह का ट्रीट करने लग जाएंगे जैसे पहले थे। She must wear a tongue, look and talk to them rudely if she wanted them to behave in the right manner। ठीक है, तो उनको बोल रहे कि तुम्हें इनके साथ टफ रहना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि वो अच्छे से रहें। नाउ द चेंज पियर्सन फैमिली, अब कैसे चेंज होते हैं? When Doris, Cyril and George enter the room, they get relieved seeing Mrs. Pearson smile. She tells her family that she wants to play a game of rummy with the family. Now जब Doris, Cyril और George enter करते हैं, they get relieved
सीइंग मिसेस पियर्सन स्माइल करती रहती है, ठीक है। शी टेल्स अ फैमिली दैट उनको क्या खेलने का मन है, रम्मी खेलने। एंड आफ्टर दैट जो बच्चे हैं वो क्या बनाएंगे, सपर बनाएंगे। वाइल शी टॉक्स टू जॉर्ज, और जब वो क्या अपने हस्बैंड से बात करेगी। Everyone agrees when Doris is hesitant. However, sharp tone of Mrs. Pearson makes her agree. पहले पहले तो डॉरिस बोल रही थी कि मैं मना ही करने वाली थी, हेजिटेंट कर रही थी, तब तक मिसेस पियर्सन पीछे से डांटती है तो वो हाँ कर देती। द प्ले एंड्स विद द फैमिली सराउंडिंग मिसेस पियर्सन रेडी टू डू whatever she suggests. Now, what is the central theme? The main idea of the play is the status of women in their own family. इस प्ले का क्या है कि मदर्स है या women है वो अपने फैमिली में कैसे ट्रीट होते हैं। The housewife serves her family with complete devotion, sincerity, and love without even asking for any favor or any love in return. बोले कि ये जो विमेन होते हैं वो सारा का सारा घर का काम करते हैं, सारे के सारे अपना लाइफ, अपनी टाइम डिवोट करते हैं। दे आर वेरी डिवोटेड, दे आर वेरी सिंसियर, एंड दे लव, even not even asking for a favor. She is, however, never given that regard, love, attention और thanks by the family members. और कभी भी एक हाउसवाइफ को या एक जो विमेन को कभी भी लव, अटेंशन और थैंक्स या रिस्पेक्ट अपनी फैमिली से नहीं मिलता है। The idea is worked out by the portrayal of the Pearson family. Mrs. Pearson is harassed in the same way. So Mrs. Pearson is harassed in the same way. Her daughter Doris, son Cyril, husband George, take her as advice for granted and have become thoughtless and selfish. ठीक है, तो उसको भी मिस पियर्सन को भी क्या करते हैं, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। द इंटरचेंज ऑफ पर्सनालिटीज एंड द हार्श ट्रीटमेंट meted out to them by the personality of Mrs. Fitzgerald in the body of Mrs. Pearson reforms them, and they obey their mother willingly after realizing her love and importance to them. Now, children, thank you so much, and I hope you understood the chapter well.